welcome to Omkara Capital's Dhanda series. Today we have with us the management of Bikaji International Limited. We have Deepak Agarwal ji and Rishabh ji from Bikaji. So we do not need any introduction about Bikaji. हर घर में Bikaji सबको पता होगा. They are synonymous with their famous tagline with Amitabh ji, Amit ji love Bikaji. I think a very warm welcome to you, Deepak ji and Rishabh ji. Thank you. So, sir, when we begin this conversation, we want you to know that Omkara Capital does not have any vested interest in Bikaji International Limited. This is purely an educational series. All right. So we can begin. So, sir, we have a set format where we would like, a little bit introduction on the company, the journey, and then about the product and the entire dhanda in a nutshell. So we can begin, sir. Okay, let me introduce my company first. That Bikaji name, is Bikaji brand introduced in 1993 from my father, and Bikaji name is inspired from the city Bikaner. And here I want to highlight that Bikaner is a very famous for Indian sweets, namkeen and papad. And you can see in every city or whether it is a tier 3, 2, 1, you will find somewhere, the sweet shop or a namkeen shop by the name of Bikaner, because Bikaner is famous for all these kinds. Almost every day, 1,000 tons of production happens, and it exports to various cities, states, countries, and different part of the places. uh, Today we are the largest manufacturer of Bikaneri Bhujia, second largest manufacturer of handmade papad after Lijjat, and with the handmade papad we give at least employment to 5,000 women every month, and we also believe in women empowerment. We are also one of the largest manufacturer of packaged sweets, which includes son papri, gulab jamun, and rasgulla. Almost we have a 2,000 distributors, direct and indirect, across India. We cover all the price point from impulse pack from 5 rupees, 10 rupees to a family pack till 300 rupees. Last year we got an approval of a PLI scheme from the government also, where we have committed to invest 430 crore rupees, and government will subsidize us 260 crore rupees. Till last year we only had a one manufacturing location, that was at Bikaner, but in last 1 year we had planned to expand aggressively, and now we have a units in Assam, Bihar, Uttar Pradesh, and South India, Tumkur, and two more is upcoming, which is one in Bikaner, that is a frozen food category, and one in Patna. So these are the small in a nutshell introduction, and we have almost 250 plus varieties in all kind of namkeen and bhujia and sweets. And our core market is like Assam, Bihar, Northeast, part of Punjab, Haryana, Gujarat, and Rajasthan. These are the core market, and we are focusing nowadays on the UP and Karnataka. We have identified these 3 4 states to focus on in next 2 to 3 years. And before 93 we had a brand name, Haldiram and Haldiram Bhujiawala. Haldiram ji was my real great grandfather who started this business in early 1940s, but in late 80s and 90s there were some restrictions on the geographies and territories between all the brands. That's how we have introduced our own brand Bikaji and withdraw the brand Haldiram. All right. I think आपका journey has been fascinating, and itna growth it's been very encouraging to see a food company do so well. So, sir, we can straight try to understand the products. I think Komal can take it forward. Sure. My first question is, what are the major products of Bikaji and how much do they contribute to the revenue? Like top two, Can three. can I take this? Can I take this? Yeah, Sure. So, Komal, actually, I am not able to view the online this video. You cannot start your video because Sure, no problem. Thank you. Yeah. We can. So we have six categories: bhujia, namkeen, papad, sweets, special snacks, and other snacks. So bhujia contribute close to 35% in our business. Namkeens, so we are manufacturing close to plus 60 different type of namkeens, and that contributes close to 36% of our total business. Sweets is a very big category. It's largely unorganized, and it's so we are seeing good growth in sweet business, and it's contributing close to 12% in our business. Papad is
contributing close to 6.5-7%, and Western snacks is 5.5-6%. So that's a whole summary of overall business. And in all the category, we are growing at 20% plus CAGR across all the categories, and we are growing at 1.5 to 2 times of overall industry growth. So like industry is growing at 10 to 15%, but we are growing at 20-25%. That's a growth we have seen across all the categories. Okay, Alright. sure. And which product segments are having high margins? See, of course, it's not disclosed in RHP, so we cannot discuss much on this. But yeah, largely all our products are largely on same. There is no major gap between sweets and papad, of course, because there is no major competition sweets and papad. But yeah, largely overall, it's not no much different, not much difference. Oh, All right. sure. So you split your revenue via products, but if you had to split your revenue in other ways, like perhaps we can say by geography or even with us Yeah. between family pack and impulse. So can we Yeah. do that? Yeah. So, see, this is our strength. So, family pack, which we are contributing, it's contributing plus 60% in our total business. So we are a family pack company. We are a part of every plate, every pantry. So that's our strength. It differentiate from other competitor who are mainly in impulse snacks. And geography wise, so Rajasthan, Assam, and Bihar, these three states are our core market. In Rajasthan, we having close to 45% market share in ethnic snacks, Indian ethnic snacks market. In Bihar, we are having close to 29% market share. In Assam, we are having close to 58% of market share in Indian organized ethnic snacks market. So we are having leadership position in across all the three states. And right now we started focusing on few six focus states, which are UP, Haryana, Punjab, Delhi, which are in north, and Karnataka and Telangana, which are in south. So we started focusing on these six states, and that's where we are focusing on. All right. This So core market, Rajasthan, Assam, and Bihar contribute close to 72% in our total business. all right, and the competitors are heavy on impulse purchases, is what you would say. So normally, yeah, all competitors 5 rupee, 10 rupee, and our 5 rupee, 10 rupees is less than 40%. All right. And why do you think the end consumers prefer family packs over impulse? So मैम देखिए, जो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे पापड़ है, रसगुल्ला है, तो ये जो प्रोडक्ट है ये खाना खाने के बाद भी खाया जाता है, खाना खाने के पहले भी खाया जाता है। मिठाई जो है वो खाने के साथ खाया जाता है। कुछ नमकीन ऐसी है जैसे भुजिया है या मिक्सचर्स है जो खाना खाने के साथ खाया जाता है। इम्पल्स पैक में आप देखेंगे जो अदर लिस्टेड कंपनीज हैं या जो अदर कैटेगरीज हैं, वो बेसिकली स्नैक्स की तरह ज्यादा कंज्यूम होते हैं और स्नैक्स की तरह उनको ज्यादा खाया जाता है, या तो राह चलते हुए खाया जाता है, या जब इम्पल्स पैक का मतलब ये होता है कि एक बार खुला तो फिर वो खत्म होता है, मतलब उसको आप शेयर नहीं कर सकते। और जो फैमिली पैक है आप उसको घर लेके जाते हो, आप उसको प्लान परचेज करके खरीदते हो, उसको एज एन इम्पल्सिटी आप नहीं खरीदते हैं। और प्लान परचेज करके आप उसको फैमिली में खाना खाते वक्त या पोहे के ऊपर या किसी के साथ में आप उसको यूज करते हो। इसीलिए हमारा जो ब्रांड है वो फैमिली इन हाउस कंजप्शन ब्रांड है, और इम्पल्स पैक ब्रांड से ज्यादा हम लोग उसको प्रेफर करते हैं। okay, sir, got it. So आपका जितना भी रेवेन्यू है उसमें से एक्सपोर्ट्स वुड बी हाउ मच ऑफ अ परसेंट So export is close to 4.5%. Okay, and maybe if we can have a little bit of understanding के margins कहाँ better है, domestic या export or same? Largely same, not much difference. All right, Oh. all right. So sir, now we'd like to move to sourcing. I think Komal. Sure, sourcing and procurement part. So the first question here is, how do you all source and what are the primary raw materials? मतलब आपके जो देखिए, प्रोडक्ट्स में हाँ जी, हमारे जो प्राइमरी रॉ मटेरियल होते हैं वो ऑयल होता है सबसे इम्पोर्टेंट, कॉटन ऑयल और पाम ऑयल है जो सबसे ज्यादा लगता है। उसके बाद में सभी तरह की जो दालें होती है, ऑल काइंड ऑफ रॉ मटेरियल इन ऑल काइंड ऑफ पल्सेस लाइक उड़द दाल, चना दाल, मोट दाल एंड मूंग दाल। So these are all pulses, and besan are key ingredients and main raw material, as well as the spices also. Spices contribution are given a very big amount. तो ये हमारे सारे रॉ मटेरियल होते हैं। हम इनकी जो सोर्सेज है
सोर्सिंग वो राजस्थान से करते हैं और आसपास के सभी स्टेट से करते हैं। मोट दाल ऐसी दाल है जो सिर्फ राजस्थान में ही पाई जाती है। Balance all kind of pulses are available on different part of the countries and even import भी की जाती है। तो इसी तरह से हम रिसोर्स करते हैं सभी दालों को एंड ऑयल को। राइट। सो सर, मैं ये पूछना चाहूंगा कि एग्री साइकिल जो होता है बहुत वॉलेटाइल होता है। जी राइट जी। अपनी कमोडिटीज के प्राइसेस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। तो हम हाउ डू वी प्लान फॉर दीज, एंड हम मतलब इन्वेंट्री लेवल पे इसको कैसे मैनेज करते हैं, और क्या हम प्राइस हाइक्स वगैरह पास कर सकते हैं? से और अलग अलग इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में ये उगाई जाती है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग दालें आती है, इसलिए हम लोग कभी इसको हेज नहीं करते हैं या कभी हम उसका ज्यादा स्टॉक नहीं रखते हैं। हम लोग इन्वेंट्री रखते हैं ज्यादातर मैक्सिमम 15 to 20 डेज। कुछ ऐसी दालें होती है जिनको हमें 30 डेज तक हम लोग रख लेते हैं, पर बाकी हम लोग जो सोर्स करते हैं वो इमीडिएट रिसोर्स करते हैं। हम लोग कभी भी फॉरवर्ड सौदा या कोई इस तरह से चीजें नहीं करते हैं। हाँ, एक दो आइटम हैं, जैसे पटेटो है तो उसका हम कुछ 20-25% कंजप्शन का हम लोग कोल्ड स्टोरेज में हम लोग उसको ट्राई कर रहे हैं कि उसको हम हैच करके रखें। और एक दो और आइटम्स है जिन पे अभी हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। बट वी ऑलवेज प्रेफर टू बाय एट द कमोडिटी प्राइस एंड एट द सेम टाइम, जिससे हमारा माल ताज़ा रहे, जिससे हम इंग्रेडिएंट्स को इजीली यूज़ कर पाएँ और इन्वेंट्री भी हमें ज़्यादा नहीं रखनी पड़े और हम उसको बैलेंस कर पाए। और अगर कभी कभी जब कमोडिटी मार्केट बहुत बढ़ जाता है तो हम भी प्राइस पास ऑन करते हैं मार्केट में, ऑल्दो प्राइस को पास ऑन करने में 30 to 40 डेज लगते हैं। सो अगर मैं ऐसे समझूं कि आप प्राइस पास ऑन करते हैं, तो आप वो पर्टिकुलर चीज का आप भाव बढ़ा देते हैं या वॉल्यूम कम कर देते हैं पैक का, देखिए मतलब कैसे आप? जो छोटी पैकिंग है 5 रुपीज 10 रुपीज, उसमें ग्रामेज कम होता है। बाकी हम्म। सभी में हम लोग प्राइस इंक्रीज कर देते हैं। ओके, एंड वुड दिस वर्क कॉन्ट्रा, मतलब कि अगर आपके रॉ जी मटेरियल को जी, अगर 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 मान लीजिए काफी प्राइस अगर डाउनफॉल होते हैं या कूल ऑफ होते हैं तो हम लोग वापस ग्रामेज भी बढ़ा देते हैं और प्राइस भी कम कर देते हैं, या किसी ना किसी तरीके से हम लोग उसको स्कीम्स के रूप में, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के रूप में, जैसे आपने कभी देखा होगा कि हमने कंज्यूमर ऑफर निकालते हैं कि 10% एक्स्ट्रा, 20% एक्स्ट्रा। तो उसका यही पर्पज है कि भाई अगर अभी हम लोग उसको 100 ग्राम दे रहे हैं तो हम उसको 110 ग्राम दें या 120 ग्राम दें, और उस तरह से हम लोग मैनेज करते हैं। ओके, गॉट इट। Go Okay, so now moving to the manufacturing part. So I wanted to understand what is the rationale behind each of your manufacturing locations. तो Oh, आपका राजस्थान में तो है था ही एक, आपका टुमकुर में एक्विजिशन के बाद आ गया है, एंड यू मेंशन्ड उड़ीसा एंड अदर प्लेसेस। सो या इज इट वेरी स्ट्रेटेजिक कि ये लोकेशंस इंपॉर्टेंट है इसीलिए इधर? सो देखिए, राजस्थान, आसाम और बिहार ये हमारे कोर मार्केट्स हैं। हम ऑलरेडी काफ़ी अच्छा बिजनेस करते हैं इन तीन स्टेट्स में। तो हम गुवाहाटी में प्लांट लेके आए इस जनवरी में, क्योंकि गुवाहाटी में हम बीकानेर से 2,000 किलोमीटर फार फ्रॉम बीकानेर। सो दैट्स द रीजन वी केम अप विद प्लांट इन गुवाहाटी। मुजफ्फरपुर इन बिहार इज अ कोर मार्केट, तो हम मुजफ्फरपुर में प्लांट लेके आए। राजस्थान में एक वेस्टर्न स्नैक नमकीन का प्लांट हमने अगस्त में स्टार्ट किया। इट्स अ ग्रुप कंपनी इन द नेम ऑफ हल्दी हनुमान। सो इन तीनों स्टेट में हम प्लांट लेके आए। साउथ इज अ बिग मार्केट, और हम बीकानेर से सर्व नहीं कर सकते हैं। दैट वाज द रीजन वी एक्वायर्ड वन स्मॉल प्लांट इन साउथ। एंड कानपुर बिंग यूपी इज द बिगेस्ट मार्केट इन इंडिया इन टर्म ऑफ कंजम्पशन। तो हमने इस दैट्स व्हाट द रीजन वी स्टार्टेड वन प्लांट इन कानपुर। सो दिस वाज अ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग अक्रॉस ऑल द स्ट्रेटेजिक लोकेशन एंड कमिशनिंग द प्लांट अक्रॉस ऑल एरिया। गॉट गॉट इट। This is for two reasons basically. One, to improvise on logistic cost. Number two, improvise service, and number three, to increase our Western snacks business, because we cannot, because it's a largely air, so we cannot sell from Bikaner to any part of India. It's mainly we can sell to 300-400 kilometer. Beyond this, it will be loss making business. ओके, गॉट इट। So, is there any complexity to manufacturing? Some businesses are, complex to manufacture. आपका business में शायद distribution is also important. तो अपने value chain में complexity या difficult to do क्या आप किसको बोलेंगे? See, this promoters is doing this business from last generations, right? So this their strength basically to manufacturing process, NPDs, ये इनकी ताकत है।
और भुजिया नमकीन बनाना इतना इजी नहीं है, बिकॉज ये लार्जली मिक्स ऑफ मैनुअल एंड ऑटोमेटेड जॉब है। इट्स नॉट कम्प्लीटली 100% ऑटोमेटेड, ये मिक्स जॉब है। तो इसमें इट इज प्रैक्टिस विच वी फॉलो, एंड इसमें काफी ऑटोमेशन किया हम लोगों ने, हम समझते हैं इस इंडस्ट्री को। और आपको डिस्ट्रीब्यूशन जो है, डिस्ट्रीब्यूशन इज द की, बिकॉज हमें हर मार्केट में पहुंचना है, तो वी नीड टू हैव डिफरेंट सेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस ईच स्टेट। सो उसमें हम वर्क करते हैं। इट्स ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन, हम इसको कैसे बेनिफिट कर पाए, कैसे इंप्रूव कर पाए। Got it. Got it. So now we can move on to understanding a little bit on demand supply environment. Sure. So, what is the current demand environment for your existing products and for the new products which you recently launched? Or सो हम फर्स्ट क्वार्टर में जैसे हमने 25% ग्रोथ की कंपेयर टू लास्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर, सो हमने अच्छी डिमांड देखी है। और ये जो दिवाली है, ये कोविड के बाद पहली दिवाली है जिसमें लोग खुल के गिफ्टिंग कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन और एनीथिंग। सो हमने भी काफ़ी अच्छी डिमांड देखी है, और हमने नहीं, अक्रॉस आई थिंक अच्छी सभी फूड कंपनी ने डिमांड देखी होगी इस साल। So we are looking at good numbers. And number two, so NPDs always will be a small, because it takes time to create an NPD to make with this NPD. So normally हमेशा जो existing category है वो काफी बड़ी होती है, और उसमें हम फोकस करते हैं। NPD is a cycle which we go on, and it takes 2-3 years to make any product big. Got it. okay, sir. So in terms of आपका जो expansion हो रहा है, new initiatives है, western snack segment, retail कम restaurant कम retail store, तो आप can you expand on these new initiatives a bit, कि आपका क्या rationale रहा है और आप क्या expect कर रहे हैं इन चीजों से? देखिए, हम लोग हर साल कम से कम 10 से 12 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं और 4-5 विड्रॉ भी करते हैं। और आने वाले टाइम पे अभी हम लोग कुछ नए प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं जो थोड़ा रोस्टेड नमकीन की तरफ भी है, हेल्दी बेस्ड नमकीन की तरफ भी है। जैसे अभी हम लोगों ने रिसेंटली किनोवा पफ, मल्टीग्रेन भुजिया, रोस्टेड नमकीन और बाजरा मिक्स और ज्वार मिक्स निकाला है। न्यू वेस्टर्न प्रोडक्ट जैसे एक्सट्रूडेड स्नैक्स जो है वो काफ़ी अभी अपकमिंग है और मार्केट में काफ़ी अच्छा उनका रिस्पॉन्ड आ रहा है, तो वो अभी हम लोग R&D में है, इन प्रोसेस में है, तो वो निकालते रहते हैं। और यही हमारी जर्नी है। हमारा तो मेन काम भी यही है कि हम लोग नए प्रोडक्ट्स निकालते ही रहते हैं, कुछ विड्रॉ करते हैं, कुछ निकालते हैं, जो चलता है उसको ज़्यादा एक्सपेंड करते हैं। तो न्यू प्रोडक्ट पे हमारा हमेशा फोकस रहता ही है। और So हमें गवर्नमेंट ने PLI स्कीम भी दी है। सो गवर्नमेंट ने हमें, वी गॉट क्लोज टू 261 करोड़ रुपीस ऑफ PLI इंसेंटिव फ्रॉम गवर्नमेंट दिस ईयर, जिसके लिए हमने कुछ इन्वेस्टमेंट कमिट किए थे गवर्नमेंट को, which is close to 430 crore rupees. It will be mix of what we need to do, and also a contract manufacturer investment which they do will also be part of our total investment. So इसीलिए हमने कुछ इन्वेस्टमेंट प्रीपोन किया, हमने कैपेसिटी इंक्रीज की, जिससे हमें गवर्नमेंट ग्रांट का बेनिफिट ले पाए। और ये जो गवर्नमेंट ग्रांट है, विल गेट इन नेक्स्ट 6 years as a staggered payment, and which will be big grant for us. so you mentioned कि आप नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हर साल करते हैं, सम यू विड्रॉ, तो आप कैसे टाइप का कस्टमर स्टडी करते हैं बिफोर दिस, इफ यू नो यू कैन शेयर? In understanding the regional flavors, Yeah, I maybe. understand that this is the regional business आपका। जी देखिए, हमारे पास में सभी तरह के हम लोग ट्राई करते हैं पोर्टफोलियो को कवर करना। जैसे आज अगर आप रेंज देखेंगे तो वी हैव अ साउथ इंडियन रेंज आल्सो, वेयर वी हैव अ मैंगलोरी मिक्सचर, मद्रासी मिक्सचर, मुरुक्कू, चकौली। एंड इन ईस्टर्न साइड जैसे चनाचूर ज्यादा चलता है, तो वी हैव अ कोलकाता चनाचूर, झालमुड़ी। We have Indori mixture like khatta meetha, ratlami. We have a Gujarati mixture. So we try to cover all kind of regional taste as well, and bring in our portfolio. So, sir, do you use any business intelligence or some sort of analytics to understand the demand? मे बी सप्लाई वो सब? देखिए, R&D सेंटर तो हमारे यहाँ है ही, जो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मार्केट एनालिसिस के बारे में देखता है। हम लोग भी बाहर नए एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करते हैं, अलग अलग ग्लोबल एग्जीबिशंस में विजिट करते हैं, और ये देखते हैं कि कौन से अपकमिंग प्रोडक्ट्स है, किस तरह के नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स के कौन से नए प्रोडक्ट्स आए हैं, या वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, किस तरह से उनका रुझान है। तो हम भी उसी को ही अपने में पोर्टफोलियो में कवर अप करने की कोशिश करते हैं, और देखते हैं कि भी ग्लोबली कौन से चीज़ को एक्सेप्टेंस हो रही है, तो उस चीज़ पे हम लोग ज़्यादा वर्क करते हैं। ऑन द मार्केट साइड वी हैव ऑल्सो, जैसे हम लोग डेटा का हम लोग काफ़ी आजकल सपोर्ट लेते हैं। हम लोग नीलसन से डेटा लेते हैं, मेंटल से डेटा लेते हैं, अदर अदर प्लेटफॉर्म्स हम लोग डेटा कवर अप करने की कोशिश करते हैं, जहाँ से हमें इंसाइट्स मिल सके कि हमें आगे चलकर किस पे काम करना है।
फिर अपना जो इंडियन मार्केट है वो बहुत वास्ट है, बहुत वाइड है, तो यहाँ से ही बहुत नॉलेज मिल जाती है कि अलग अलग रीजन पे अलग अलग चीज़ों के हिसाब से हमें काफ़ी इनपुट्स मिल जाते हैं। गॉट इट। तो सर इफ आप आपने अभी बिजनेस डिमांड और आपने थोड़ा बहुत स्ट्रैटेजी के बारे में बताया, तो आई वुड लाइक टू फर्दर आस्क क्या आप आपका डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है दैट इज वेरी की। तो विथ रिस्पेक्ट टू विनिंग इन डिस्ट्रीब्यूशन आप किस तरह के इंसेंटिव्स देते हैं, या फिर आप क्या ऐसा करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर अपना माल पहले बेचे या ज्यादा बेचे? देखिए आजकल अगर हम फोकस स्टेट्स की बात करें तो हम लोग वहाँ पे थोड़ा मार्जिन्स जो है वो एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं अपने चैनल्स को। साथ में हमारे पास अमिताभ बच्चन जी है, जिनसे हम लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो एक ट्रेडर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स का कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं इनका ऐड आता है तो इनका माल बिक जाएगा। सो दिस काइंड ऑफ अ कॉन्फिडेंस कम्स इनटू द रिटेलर्स एंड टू द डिस्ट्रीब्यूटर एंड द होल चैनल। फिर हम लोग पूरा फोकस करते हैं सर्विसेज पे, हम लोग पूरा फोकस करते हैं रूट प्लान्स पे, बीट प्लान्स पे हम लोग फोकस करते हैं। साथ में आज की डेट में देर आर मेनी टूल्स टू इन टेक्नोलॉजी वाइज, जैसे हम लोग ये ट्राई करते हैं गूगल के हिसाब से कवर अप करने का कि भी कौन सी रिटेल पे हमें कहाँ पे जाना है, सेकेंडरी सेल्स को हम लोग कवर अप करने का और उसके साथ डेटा लेने का हम लोग पूरा कोशिश करते हैं। ओके। So, and also, do you feel there is an underinvestment in new markets like West and South? And what are your plans for expansion in these regions? मैम You जैसे already said Tumkur, you have acquired हाँ, जैसे recently. मैंने बताया कि भाई साउथ इंडिया में हम लोग ऑलरेडी एक्सपेंड कर चुके हैं, वहाँ पे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बड़ा किया है। एथनिक स्नैक्स में भी हमने वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की है। सो वी हैव अ फुल रेंज देयर, वेदर इट इज वेस्टर्न स्नैक्स, एक्सक्लूडेड स्नैक्स और एथनिक स्नैक्स, savories, and also we are presented in eastern side, and now we are presented in central side like Uttar Pradesh and Bihar. So we are covering almost all the regions, and आने वाले समय में अगले 1 से 2 सालों में जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज आएगी वैसे वैसे हम और एरियाज को कवर अप करते चले जाएंगे। गॉट इट। Got it, sir. सो इन टर्म्स ऑफ ब्रांडिंग यू हैव ऑलरेडी मेंशन कि अमित जी है और आपका पहले ही मैंने मेंशन किया, तो अब उस एंड पे इज देयर समथिंग लेफ्ट टू डू, और अभी कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं ज्यादा और उधर? नहीं, अमिताभ जी हमारे बोर्ड पे टिल 23 तक, 2023 दिवाली तक। और अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम लोग विचार करके उन्हीं को रिन्यू करेंगे, बिकॉज ही इज द आइकन ऑफ द इंडिया एंड ब्रांड एम्बेसडर, एंड वी आर वेरी हैप्पी विद हिम एंड हिज रिस्पॉन्स। तो हमें फिलहाल लगता है कि उस एंड पे हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। आज की डेट में वी आर द हाईएस्ट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अमंग ऑल द कॉम्पिटिटर्स इन इंडिया। गॉट इट, या। ओके सर, सो इन टर्म्स ऑफ बिग पिक्चर, अभी इंडिया का स्वीट मार्केट है, पैकेज फूड मार्केट है अभी, कितना है अनऑर्गेनाइज्ड, कितना है, और आप कैसे, हाउ डू यू सी द ट्रेंड, कि आप देखते हैं कि ये ऑर्गेनाइज ज्यादा हो सकता है और हम इसमें शेयर लेंगे? देखिए स्वीट मार्केट जो है वो तो अभी फिलहाल सिर्फ 10% ही ऑर्गेनाइज्ड है, बाकी राइट। 90% तो अनऑर्गेनाइज्ड है। तो स्वीट का तो रेवोल्यूशन अभी आना बाकी है, और अभी अगले 5 से 10 सालों में बहुत रेवोल्यूशन आएगा, बहुत पैकेज इंडस्ट्रीज में अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज कवर अप होगा। उसी राह पे अगर हम एथनिक स्नैक्स और वेस्टर्न स्नैक्स की बात करें तो अराउंड 55% ही अभी ऑर्गेनाइज्ड है और बाकी सारा अनऑर्गेनाइज्ड है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि अगले 5 साल में करीबन और 5% ये ऑर्गेनाइज हो जाएगा। तो स्कोप बहुत है, टोटल 1.5 लाख करोड़ का मार्केट है, तो अभी तो बहुत स्कोप है। और इंडिया का जो अभी डिकेड है वो भी बहुत पॉजिटिव लग रहा है, तो वी ऑल आर पॉजिटिव। गॉट इट, सो दिस इज द बिग पिक्चर कि ये बड़ी बड़ी रेवोल्यूशन हो सकती है इंडिया में। So this we just began, right, outside. Got it. So any last question? Actually, it's around 5 p.m. All right, all right. So then if it's the last question, then we'd just like to ask you that थोड़ा बहुत रिस्क के बारे में हम जान सके कि D2C brands, direct to customer brands है. Do you see that them as competition? And apart from that, if you'd like to add, if any risk of the sector or your company per se, if you can elaborate on that. Rishabh, you take please. Yeah. सो रिस्क पर्सपेक्टिव सी हमने काफी प्लांट इस साल लगाए हैं। सो हम पहले बीकानेर में थे, हमने काफी प्लांट अक्रॉस ऑल पार्ट ऑफ एरिया लगाए हैं, ऑल को। सो वो अल्टीमेटली दैट्स अवर स्ट्रेंथ, बिकॉज हम एग्जीक्यूशन में प्लांट में बहुत स्ट्रांग है। तो हम
हमारे नेक्स्ट 2 years टारगेट है कि हम सभी प्लांट जो हमने बाहर लगाए उसको प्रॉपर्ली एस्टाब्लिश कर पाए, कैपेसिटी को यूज कर पाए, दैट्स वन थिंग। नंबर 2 ऑफ कोर्स क्वालिटी इज अवर स्ट्रेंथ, हम जितने भी प्लांट है बाहर हम क्वालिटी सेम मेंटेन कर पाए और हम ऑलवेज इंप्रूव कर पाए, बिकॉज FSSAI भी काफी स्ट्रांग है एंड वी बीइंग अ लीडर इन दिस सेगमेंट ऑलवेज been looked upon by every competitor and every small and big player. So number 2 and number 3 of course, so we are very strong on team. So in last 2 years हमने काफी strong team बनाई है हमारे यहाँ पे, हम उस टीम को मेंटेन कर पाए और टीम को कंटिन्यू हम ग्रो कर पाए, जो कि डायरेक्टली सो टीम हमें ग्रो कर पाए, कंपनी ग्रो कर पाए। सो दैट्स अ थिंग। एंड बाकी तो देखिए रिस्क जैसे ऑफ कोर्स प्राइस है, जो इन्फ्लेशन प्रेशर देखा हमने लास्ट 18 months में, जिससे अक्रॉस ऑल कंपनी फूड कंपनी इम्पैक्ट हुई है, हम भी इम्पैक्ट हुए, बट ये हमने लार्जली पास ऑन किया है क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ है कि हम 60% से ऊपर फैमिली पैक है, हम मल्टी कैटेगरी कंपनी है, हम भुजिया नमकीन पापड़ स्वीट्स, तो हम किसी सिंगल रॉ मटेरियल डिपेंडेंट नहीं है। तो कोई अगर सिंगल रॉ बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ते हैं तो हम पे इतना फर्क नहीं पड़ता है। तो दैट्स स्ट्रेंथ ऑफ अ कंपनी। फर्स्ट क्वार्टर जो था, जो इस साल जिसमें हमने 25% ग्रोथ की थी कंपेयर टू लास्ट ईयर, हम जो टफेस्ट क्वार्टर था फॉर एनी फूड ब्रांड, उसमें भी हमने क्लोज टू 7.4% का EBITDA किया है। तो ये कुछ स्ट्रेंथ है कंपनी की और कुछ हमें काम करना है इन नेक्स्ट 2-3 years। All right. So I hope आपके IPO के लिए आपको good luck from our side, and we hope it's a blockbuster listing and you will continue to do well. Sure. Thank you very much. Thank you, Deepak ji. Thank Thank you, you. Rishabh. Thank you, Rikin, Komal.